Okay. So time of supply, we have completed goods under forward charge, that is date of goods or date of service, whichever is earlier. Goods under reverse charge, invoice plus 30, date of goods, date of payment, whichever is earlier. Okay. Then there was a service part. Okay. If invoice is valid or if invoice is not valid, that also we have covered. Okay. And I will forward this page also, don't worry. Now, services under reverse charge, that is pending, which we will start today. Okay. So service under forward charge is same as this only. Okay. Instead of date of goods, there will be date of service, and instead of this 30, there will be 60 days. Okay. So when it is reverse charge mechanism under services, there will be invoice date plus 60 and other thing remains the same. Okay, got it? Any doubt, any question, any concern? We'll start with the question also to understand it better. Supply of goods. I'll download it from the group only itself. Okay, let's see if the question is there. Otherwise, we'll have to see it in a different way. Supply of goods under a normal charge. Okay. Supply of service is not given. किसका mic on है? Saima. Okay. So I will quickly open the book only. From there, we can take the question directly. Give me 2 minutes. Okay. Till then, I hope there is no doubt in the theory part. If any, please tell me. I know you guys want to sleep for more time. You'll keep on sleeping and exam will come and then trouble me only. No, sir. Okay. Sorry. Section is B. Tax. Okay, this one. So we have got the book now. Concept of supply 64. So this subject is taxation or cost. बेटा ये टैक्स है, कौन ने बोला आपको कॉस्ट है इसमें? एंड द थिंग इज ऑलरेडी क्लियर, जिस वीक में हम लोग टैक्स करेंगे उस वीक में हम लोग कॉस्ट नहीं करेंगे. सो कहाँ से क्वेश्चन आया आपको? ऐसे कभी हुआ है कि बीच में टैक्स चल रहा है, बीच में कॉस्ट भी स्टार्ट हो गया?
It is not possible. Okay, so time of supply of service. Okay, this is the question. Supply, determine the supply, independent cases, find out the supply. यही है. RCM दिखता है क्या? Determine the time of supply. Very good, we got it. Okay, this is the question. I will forward it. Okay. Because this is not there in the notes also, because previously I didn't bother about this topic also because it never came in the exam. But from the time it is online, they have been means they are asking so many questions on this topic also. So you may get question on this also. But in practical, they never asked it. They only asked forward charge. Okay. So question is forwarded, and look at the question now. Determine the time of supply in following independent cases, assuming GST provision regarding RCM. ठीक है, RCM है. Now, in case of goods, अगर आप वैलिडिटी देखेंगे इनवॉइस की, इट इज within 30 days. तो 30 days में उसकी वैलिडिटी होती है. बट इन केस ऑफ सर्विस वैलिडिटी कब होती है उसकी? 60 डेज में. मतलब सर्विस के केस में हम लोग 60 डेज का बैकअप उसको दे रहे हैं. एनीवेज हम लोग सर्विसेज में जो फॉरवर्ड चार्ज था, वहां पे हम लोग कंपेयर करते थे कि इनवॉइस इशू हुआ नहीं हुआ, है ना. ये सब सारी चीजें हम लोग कंपेयर करते थे. बट यहाँ पे हम लोग वो सारी चीजें नहीं करने जा रहे. गुड्स के केस में हमने क्या किया था? हमने सिंपली इनवॉइस डेट में 30 डेज प्लस कर दिया था. यहाँ पर आपको इनवॉइस डेट में 60 डेज प्लस कर देना है. सिंपल चीज है, इतना भी सिंपल नहीं है. ठीक है. तो अगर मैंने कहीं पे बना के रखा है तो आई विल कॉपी, अदरवाइज आई विल टेक द एक्सेल शीट नाउ. तो एकदम ध्यान से सुनो. दिस इज नॉट सो इजी, क्योंकि 30 डेज में ही तुम लोग को पता है तुम्हारी हालत खराब हो गई थी. एवरीवन इज नॉट ओके विद दी डेट्स एंड ऑल. डेट्स वगैरह ज्यादा किसी को पसंद नहीं आती, इंक्लूडिंग मी. मुझे भी नहीं पसंद है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब डेट्स वगैरह की बात आती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डेट्स वगैरह जो है हम लोग याद रखने की आदतें नहीं है. तो सबसे पहले आपको दिया है, मैं तो ले लेता हूँ इनवॉइस ही, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस को मैनिपुलेट करना है. इनवॉइस डेट प्लस 30 प्लस 60 मैं ले लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और ये सर्विस का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. अगर ये गुड्स का होता तो सिर्फ चेंज इतना था कि यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा. ठीक है. देन डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट. एक से ज्यादा डेट ऑफ पेमेंट दिए तो भी आप दे सकते हैं. कई बार डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स दिया होता है, कैश बुक में एंट्री दिया होता है, व्हाटएवर जितनी भी डेट ऑफ पेमेंट दी, आप कोई भी डेट ऑफ पेमेंट आप सभी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर RCM. ठीक है. RCM में हम पता करेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज की टाइम ऑफ सप्लाई क्या है. ओके. इनवॉइस डेट प्लस 60 तो लिख दिया, बट इनवॉइस डेट नहीं है. तो पहले मैं इनवॉइस डेट लिख देता हूँ यहाँ पे. इनवॉइस डेट आज हम लोग पहले सीखेंगे कि इनवॉइस डेट को कैसे हम लोग 60 डेज प्लस करते हैं. तो फर्स्ट केस में यू कैन सी कि आपका इनवॉइस डेट क्या है, 25 अक्टूबर 2020. करेक्ट. नाउ टेल मी कि अगर हम इसमें 60 डेज प्लस करेंगे, नाउ इट इज व्हाट, 25 अक्टूबर 2020. okay, if I add 60
Okay, if I add 60 to this, it becomes 85. Very good, Aisha. It becomes 85. But अभी unmute किसने किया है? रागिनी. Okay. Okay, so it becomes 85. Got it? मैंने क्या किया? Invoice date में 60 days मैंने add कर दिया. जैसे हम लोग गुड्स के केस में 30 करते थे, वैसे मैंने सर्विस के केस में 60 कर दिया. नाउ ये मंथ कौन सा है आपका? अक्टूबर है. तो सबसे पहले आप कौन से डेज निकालेंगे? अक्टूबर की. फिर कौन से निकालेंगे? नवंबर की. ठीक है. और आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे दिसंबर में. ठीक है. तो आप मुझे बताइए कि अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? चलो, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31. मुस्कान, वेरी गुड. और नवंबर में कितने होते हैं? 30. करेक्ट. सो गुड, मुस्कान. देन धनलक्ष्मी. ओके, सो वी गॉट इट. 30 अक्टूबर जो है 31 का है और नवंबर जो है वो 30 का है. ठीक है. ओके, सो टोटल 61 हो गए. 85 में से when you deduct 61, it comes to how much? It comes to 24th December 2020. ठीक है. 24th December 2020. थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसका कैलकुलेशन. Okay, so moving to the next date. I hope it is audible now. Okay, moving on to the next date. That is your, okay, 20 नहीं था, 20. हाँ, next is 20th October. Next invoice date is 20th October. Okay, so 20th October 2020. Okay, okay. So same way मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब फॉर्मेट को. डेट है आपकी 20th अक्टूबर. ठीक है. एडिंग टू 60 इट बिकम्स 80. मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड. इट इज 80 अक्टूबर 2020. सो मुझे दो ओके मुझे अक्टूबर और नवंबर के डेज मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तो जाके मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? दिसंबर. ठीक है. सो अक्टूबर के 31, नवंबर के 30. ठीक है. 61 अगर 80 में से माइनस होते हैं, इट कम्स टू 19th December. So I will write over here 19th December 2020. ओके. कुछ लोग बोलेंगे सर इसका 24 आया था तो इसके तो 5 दिन कम है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे. हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप. ठीक है. व्हेन यू आर यूज्ड टू इट, आपको जो लॉजिक लगाना है आप उसके बाद लगाओ, नो प्रॉब्लम. मेरा कोई कंसर्न नहीं है उसमें. ठीक है.
ओके सो नेक्स्ट डेट क्या है इनवॉइस की? नेक्स्ट डेट इज अगेन 25 अक्टूबर। तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 25 अक्टूबर का, है ना? तो सेम ही आंसर आएगा, आप वापस से करेंगे तो मैं ये नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं। इवन 20 अक्टूबर का हो गया है बेटा, है ना? सो वो भी आप वैसे ही कॉपी कर लो, क्या जरूरत है ना, वापस से कैलकुलेट करोगे आंसर सेम आएगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा 12 नवंबर के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, है ना? सो डेट इज 12 नवंबर 2020, ठीक है? एडिंग टू 60 इट बिकम्स 82 नवंबर, ठीक है? इट बिकम्स 82 नवंबर, करेक्ट? सो सबसे पहले नवंबर के डेज माइनस होंगे, फिर दिसंबर के होंगे, मतलब आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? जनवरी 21 में पहुंच जाएंगे आप। कितना हुआ? ओके सॉरी 72, करेक्ट ना? 60 प्लस 12 इज 72, नॉट 82। ओके ओके, नाउ नवंबर में डेज कितने होते हैं? 30 होते हैं। दिसंबर में होते हैं 31, करेक्ट? तो मेरा आंसर 72 माइनस 30 माइनस 31 कितना आएगा? 11th आ जाएगा। ओके, समवन हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, साइमा ने आंसर दिया था ऑलरेडी, मुस्कान ने दिया, रेशमा ने दिया, इट इज 11th जनवरी 21। ओके, so the date was this and the answer is 11th January 2021. Okay, okay, moving on. The last date is this 8/12/2020. Okay, I will take this date. I will add 60. If you add 60 and 8, you will get 68 12 2020. ओके, सो पहले आप डेज किसके माइनस करेंगे? दिसंबर के, फिर जनवरी के। ओके, तो आप कौन से मंथ में पहुंच जाएंगे? फेब 21 में पहुंच जाएंगे आप, दूसरे ईयर में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है? ओके, ओके, नाउ दिसंबर में होते हैं 31, जैन में भी होते हैं 31, है ना? सो it becomes 68 minus 31 minus 31. Okay, great. It is 6th February 21. Is there any doubt? Very good. Muskan, Saima, Reshma, Banita is also there in the chat box. Okay, so first task is to calculate the 60 days from the date of invoice. Invoice date plus 60 is the major part that needs to be taken care. Now everything else is as per question only. Okay, date of service is given. Date of service, first case में if you look at the date of service, it is 20th October. So I have written somewhere 20th October. This is 25th October. 25th October. This one is 21st October. So this is 21st October. I am just writing what is given in the question.
nothing else. Then it is 30th October. Then it is 12th October. And last one is 20th October. Okay. Payment date, again you copy from the question only. It is 26th October. Next is 30th 12th. 30th 12th. Next is 26/10. ऊपर है, कॉपी कर लेता हूँ. 25/12. So I am taking everything from the question. So it is 15th Jan. Then last one is 9th 11. Okay. Okay, now we are going to calculate the time of supply. Okay, time of supply is the earlier of these 3 dates. Time of supply is the earlier of this 3 date. Invoice date we have already manipulated plus 60 करके, ठीक है. In first case if you see, correct है. Reshma, Muskan, it will be 20th October. Very good, beta. Okay, and in the second case, if you look at this, you will get, this is the October. Yes, very good, Muskan and Reshma. The answer is 25th October. Okay. Next it is 21st October. Okay, good. Reshma, Hazra, Saima, Aisha. ठीक है, are you getting it? इस केस में आप देखेंगे, so you will get 30th October. In this case, if you say this is 21, among these two, earlier is this, and among these three, this is 21, तो मैंने उसको drop कर दिया, and this 2020 it is there, so among this it is 20th October. Correct. Okay, very good. Iram, Aisha, Muskan, Saima, Jayashri, Reshma, very good. You all are participating. Calculation of time of supply. Okay, this is question number 8. Okay, so I have shared this also. इसके बाद आपको सिर्फ याद रख लेना है, ठीक है. मतलब from exam point of view, they may ask direct question. देखो हमने क्या क्या complete कर लिया. We have completed goods under forward charge, then goods under reverse charge, service under forward charge, service under reverse charge. Now goods on approval.
मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जस्ट लर्न करके ले लो, ठीक है। मे बी क्वेश्चन इज देयर इन दी इन दिस और नॉट, दैट्स नॉट द केस, बट एटलीस्ट आप इसको लर्न करके ले लो कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में आइदर यू विल टेक डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ और डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल मैंने आपको बताया था, जिस दिन गुड्स वहां से निकला और आपके पास आया, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल, क्योंकि इस केस में डेट ऑफ सेल नहीं हो सकती। अप्रूवल का मतलब आपको पता है, अगर आपको कुछ पसंद आया तो आप रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, है ना। सो डेट ऑफ रिमूवल क्या 6 + 6 मंथ कर देना आपको, ये इजी है, डेज नहीं है, ये मंथ है, तो आप खाली 6 मंथ ऐड कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस सप्लाई में डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सो दिस ऑल इज देयर इन टाइम ऑफ सप्लाई। दिस नोट्स जो है, जो अब ये भी मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो कि मैंने चेंजेस किया है इसके बाद, फॉरवर्ड करने के बाद, दिस, है ना, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस शुड ऑल्सो बी कॉपीड, ठीक है, and pasted in the group. So this 4 is very important. Apart from this, if you want to remember, you remember the things कि कैसे मतलब आपको theoretically याद रखना है, practically इसके ऊपर question है, भले if you look at the question that I have forwarded, वहां पे भी आपको मिलेगा। ओके, कहाँ है अप्रूवल, मैंने देखा था कल। हाँ, look at this question बेटा, ये क्वेश्चन आप देखो। डेट ऑफ रिमूवल आपका है 12 दिसंबर, अगर आप 6 मंथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा। डेट ऑफ रिमूवल में 12 दिसंबर है, और अगर मैं 6 मंथ इसमें प्लस करूं तो कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 6/6/2020 हो जाएगा, है ना। 6/6/2020 हो जाएगा। वैसे ही आप सब जगह देखेंगे तो 15/6 हो जाएगा, 16/6 हो जाएगा, देन 20th/6 हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा, ठीक है। एवरीवेयर इफ यू विल सी 6 मंथ ऐड करने के बाद आपको पता है कि दिसंबर से अगर आप आगे 6 महीने जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आता है ना। तो एवरीवेयर इट विल बी जून ओनली, एंड जून 2020 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सारी डेट्स में से अर्ली ले लो। सारी डेट्स में से आपके पास है इन डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ, डेट ऑफ इनवॉइस है आपके पास, और फिर लास्ट है आपके पास पेमेंट डेट, दोनों दी हुई है, आप दोनों लिखेंगे, ठीक है। फिर वो जो डेट आपको मिली है 6 मंथ प्लस करके, वो इनवॉइस डेट, रेसिपिएंट और पेमेंट डेट, एक्सेप्टेंस बाय रेसिपिएंट एंड पेमेंट डेट, आप सबका अर्लियर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और कोई तीसरा रूल नहीं है। इन तीनों में सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, डेट ऑफ रिमूवल में 6 मंथ प्लस करके एक कॉलम बना लेना है, और बस सबका अर्लियर ले लेना, डेट ऑफ रिमूवल भूल जाना, ठीक है। तो इस तरह से होता है डेट ऑफ रिमूवल। और अगर इसका होगा तो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई भी कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। हाँ, इधर देखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये तीनों का आपको क्या ले लेना है, अर्लियर ले लेना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई में डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इस सब में से आप क्या लेंगे, अर्लियर लेंगे। आई थिंक लेस देन 10 minutes इज रिमेनिंग, सो आई विल गो फॉर द अटेंडेंस फर्स्ट बिकॉज इट टेक्स टाइम। किसी ने तो ये प्रॉपरली लिखा भी नहीं, नाम भी नहीं लिखा हुआ है, तो प्रेस करके अपना नाम तो लिखो, एटलीस्ट टॉप पे ही है वो बंदा। आई थिंक ही इज 100 अच्छा 16, अच्छा बेटा 0, वो आप अपना जो सिंबल है वो हटा दो और 016 लिख दो, आप वो सिंबल हटा दो, सिर्फ 016 लिख दो, दैट्स इनफ। इवन इफ योर नेम इज नॉट देयर, यू राइट योर रोल नंबर, बट फैंसी वगैरह मत लिखो, राइट ओनली द रोल नंबर्स। कितना इजी है जाके चेंज करना, पार्टिसिपेंट में जाओ, प्रेस करके रखो, हाँ,
प्रेस करके रखो अपने नाम पे, रीनेम का ऑप्शन आएगा। अभी भी आई कैन सी आफरीन, अल्फिया, साबिरा, सफिया, ताहिरा, ठीक है, they have not done it properly. Okay, so I will mark the attendance now for the first lecture because we have two today. Okay, now, okay, A, roll number 3, 11, 13, 3, 11, 13, 16, 22, 33, 35, 37, 38, 33, 35, 37, 38. Okay, 42 and 50, 42, 50, 52, 53, 58, 52, 53, 58, 67, 74, okay, 75, 85, 94, 95, 97, 100, 101, 102, okay, 118, 122, 123, कहाँ गया 123, 123 के बाद it was 130, 134, 135, 130, 134, 5, 6 is absent, 7, 8, 9, 41. Okay, so it was 134, 135, 137, 138, 139, 141, 145, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 173. अच्छा, 170 is also there. 170 is there. दो लोग साथ में अटेंड कर रहे हैं. 173 हो गया, 177. Okay. Then 182. Then 186. 188. 189. 194. 198. And I can see Tahira 66 is also there. 99 is there. Okay, 99 तो रोल नंबर ही नहीं, मिसिंग है. 94, 94 तो मार्क किया. 136, 136 साहिल. ओके, ताहिरा बेटा आप क्लास टीचर से बात करो, आपका रोल नंबर नहीं मिला मुझे. साबिरा इज 152. ओके, मार्क कर दिया. आफरीन इज 64. Why you guys are not writing your name? And this is the last time I am marking. 182. 182 is marked. 53. 53 का नाम क्या है? शंकर साहू was not there. So if you joined just now, अच्छा शंकर साहू was there. 53. No, it is there. 189.
Why are you guys writing your roll number when it is already marked? 189, 89. मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो बट अटेंडेंस के टाइम पे आ रहे हो, सो दैट इज नॉट गुड. 35. एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल मेक श्योर आप अच्छे से रिनेम करो, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, आपको चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है. सो वी एग्जैक्टली गॉट 54 विथ अस and we covered time of supply under time of supply of services under RCM. ठीक है. Okay, so this is done. We will take 5 minutes break and we will rejoin. I think 9:30 हो गए. Okay, 10 o'clock का lecture है. ठीक है. So now I will wind up the lecture. Then we will meet at 10 with the same link. Sir, please बताओ ना, क्या बताओ? कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? I didn't see a question. सर दोनों टैक्स सब्जेक्ट का है क्या सर? हाँ दोनों टैक्स मतलब अच्छा आज, हाँ आज दोनों टैक्स का है. ठीक है. और अब तो हमने टैक्स कंप्लीट कर लिया, तो मे बी वी कैन स्टार्ट विद द प्रोसेस नाउ. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर. और एल्स यू मे हैव टेस्ट, क्योंकि हाँ आज टाइम ऑफ सप्लाई का टेस्ट दे दूँ, ये भी कर सकते हो आप. तो आपने ताज़ा ताज़ा सीखा होगा तो टेस्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट टैक्स आज कंप्लीट करते हैं. फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल फ्रेश स्टार्ट विद द प्रोसेस कॉस्टिंग, दैट इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हमने हाफ तक के कंप्लीट किया था, एंड वी विल कंटिन्यू. ओके, वी विल मीट एट 10. बाय.